Good morning everyone. Today we are going to solve exercise 12.2. This exercise is based on the distance formula. In earlier classes we have found the distance between 2 points by using two dimension geometry. Okay, two dimension geometry के लिए हमने use किया था. Now this exercise is totally based on three dimensional geometry distance formula. Suppose we are having a point P here, okay, and Q is here. The coordinates of point P is x1, y1 and z1. Okay, and coordinates of point Q is x2, y2 and z2. So we have to find the distance between this point and this point. Point P and Q के बीच में हमें distance find out करनी है. How we are going to find? By using a distance formula that will be x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square plus z2 minus z1 square, the whole under root. Okay, this is our distance formula for three-dimensional geometry between 2 points. So let's start our exercise. We have our first question, that is we have to find the distance between the following points. 4 question हमें given है, 1 2 3 4. I'm going to solve one only for you, rest you have to solve. Okay, so first is 2 3 5. This is x1 y1 z1 and this is x2 y2 z2. Okay, I'm writing here x1 y1 z1. We have 2 3 and 5. Suppose this is point P. Okay, and point Q we have 4 3 1. Now we have to find the distance between these 2 points. How we are going to find? By using a distance formula, that is PQ equals to under root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square plus z2 minus z1 square. This is our x1 y1 z1. This is our x2 y2 z2. Now we are going to put all this in this distance formula. So our PQ will be x2 minus x1. x2 means 4 minus 2 square, right? Next is y2 minus y1, that means 3 minus 3 square. Okay, next is z2 minus z1, that means 1 minus 5 square, the whole under root. Okay, 4 minus 2, that is 2 square, 3 minus 3, that is 0, and 1 minus 5, that is minus 4 square. What we have to do, just solve it, simple easy calculation. This is 4, right? ये 0 हो जाएगा and ये होगा 4 4 जा 16, right? So our solution is 20 under root. 20 under root को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 5 जा 20, right? तो 4 हम बाहर लाएंगे तो 2 आ जाएगा and under root 5 we will have. So the distance between P and Q is 2 root 5. Okay, now we have our second question, that is show that the points we are having, points हमें given है क्या? Suppose P point is 2 3 and 5. Okay, Q point is 1 2 and 3, and we have R point, that is 7 0 and minus 1. Okay, 3 points we are having and हमें बताना है कि ये points क्या है? कोलिनियर है. कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन के ऊपर है, तो दैट मीन्स कि अगर ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q होगा, ये पॉइंट R होगा, और हमें ये प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है. तो इसके लिए भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे. पी क्यू के साथ करेंगे, क्यू आर के साथ करेंगे एंड आर पी के साथ भी करेंगे. ओके, सो फर्स्ट हम देख लेते हैं पी क्यू के साथ. पी क्यू के कोऑर्डिनेट्स वापस से लिख लेते हैं. ये है -2 3 एंड 5. ओके, -2 3 एंड 5 हमें दे रखा है, दैट इज पॉइंट पी, एंड क्यू पॉइंट वी आर हैविंग 1 2 एंड 3. ठीक है, पी क्यू के अंदर हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है. सो x2 माइनस x1, 1 माइनस -2 है तो प्लस हो जाएगा स्क्वायर. ओके, y2 माइनस y1, 2 माइनस 3 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1, 3 माइनस 5 स्क्वायर. राइट, सॉल्व करेंगे इसे, वी विल हैव 3 स्क्वायर
plus 2 minus 3, that will be minus 1 square, and 3 minus 5, that will be minus 2 square, right? After solving this, we will get 9 plus 1 plus 4. That will be 9, 10 and then 14. Okay, क्या आएगा हमारे पास? 14 under root. Now we have to find the distance between Q and R. ठीक है, ये तो हमने पी क्यू निकाला, अब हम Q और R निकाल लेते हैं. अगेन लिख लेते हैं. Q के कोऑर्डिनेट्स है 1, 2 and 3. R के कोऑर्डिनेट्स वी आर हैविंग 7, 0 and -1. ठीक है, तो क्यू आर का डिस्टेंस निकाल लेते हैं. दैट विल बी x2 minus x1, that means 7 minus 1 square plus 0 minus 2 square plus minus 1 minus 3 square. So after solving this, we will get 7 minus 1 will be 6 square minus 2 square, and this will be minus 4 square, right? Now 6 square will be 36. Okay, 2 square will be 4, minus minus will become plus, and again 4 square will be 16, right? After solving this, we will get 6 plus 4 12 14. ओके, तो यहाँ हमारे पास आएगा क्या? 12 plus 4 16. ओके, 6, 3, 4 and 5. Only under root 56. After solving under root 56, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 14 4 जा 56, राइट? 4 4 जा 16, 5. ये लिख सकते हैं इसको, और इसके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 root 14. ओके, दैट विल बी क्लियर. नाउ वी विल फाइंड पॉइंट पी आर. ओके, पी आर के बीच में डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे. अभी तक हमने पी क्यू निकाला, क्यू आर निकाला. नाउ वी फाइंड पी आर. पी के कोऑर्डिनेट्स है -2, 3 and 5, एंड आर के कोऑर्डिनेट्स हैं 7, 0 and -1. तो पी आर के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे. दैट विल बी 7 plus 2, ये माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस 0 minus 3 square प्लस -1 minus 5 square. ओके, after solving this, we will get 9 square plus -3 square plus -6 square. Okay, इसको solve करेंगे. Then we will have 81 plus 9 plus 36. That will be 126 under root. Okay, तो ये क्या होगा? 9 into 14. So after solving this, we will get 3 root 14. So you can see PQ is root 14, right? QR is 2 root 14 and PR is 3 root 14. So हमने देखा था कि ये कोलिनियर कैसे होंगे जब PQ plus QR इक्वल टू होगा PR. ठीक है, तो यही देख लेते हैं. PQ plus QR इक्वल्स टू PR हमारे पास आता है या नहीं आता है. तो PQ is under root 14, QR is 2 under root 14 and PR is 3 under root 14. So this is the collinear points. Okay, now we have our question number 3. Question number 3 is verify the following. क्या वेरीफाई करना है हमें? थर्ड के क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि 0, 7 and -10. नेक्स्ट पॉइंट है 1, 6 and -6. Okay, next point है 4, 9 and -6. We have 3 points are the vertices of an isosceles triangle. Isosceles triangle कब होगा? As you know कि isosceles triangle होता है ओके. आइसोसेलेस ट्राइंगल कब होगा? सपोज ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है. तो आइसोसेलेस के अंदर 2 साइड्स इक्वल होती हैं, थर्ड इक्वल नहीं होती है. ओके, तो 2 साइड्स इक्वल होंगी, थर्ड इज नॉट इक्वल. तो व्हेन ए बी
इक्वल्स टू AC हमारे पास आता है एंड विच इज़ नॉट इक्वल टू BC, तो हमारे पास क्या होगा, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस होंगे. अगेन वी आर गोइंग टू यूज डिस्टेंस फॉर्मूला. सपोज दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट C. ये हमारे पास पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फर्स्ट फाइंड AB निकाल लेते हैं. ओके, सो formula we will use x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square plus z2 minus z1 square. तो AB के लिए first we use 1 minus 0 plus 6 minus 7 square plus minus 6 plus 10 square. After solving this, we will get 1 square plus minus 1 square plus 4 स्क्वायर. ओके, सो इसे सॉल्व करने के बाद वी विल गेट अंडर रूट ऑफ 18. ओके, वी कैन राइट अंडर रूट 18 एज 9 2 जो 18 होता है. ओके, तो वी कैन राइट इट एज 3 रूट 2. ओके, नाउ वी फाइंड BC. AB वी हैव फाइंड. अब हम फाइंड करेंगे BC बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला. ये B के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये C के कोऑर्डिनेट्स हैं. ओके, 4 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 6 प्लस 6 स्क्वायर. आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 3 स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा. ओके, एंड 3 स्क्वायर. 9 प्लस 9 दैट विल बी अगेन 18 अंडर रूट, और 18 अंडर रूट अगेन हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी 3 रूट 2. ओके, टू साइड्स तो हमारे पास इक्वल आ गई. अब देखते हैं थर्ड इक्वल आती है या नहीं आती है. दैट मीन्स AC. ठीक है, तो AC विल बी x2 माइनस x1. x2 माइनस x1 मीन्स 0 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 9 स्क्वायर प्लस minus 10 plus 6 square. So after solving this we will get minus 4 square plus minus 2 square plus minus 4 square. Okay, so after solving this we will get 16 plus 4 plus 16. Then our solution is under root 36. Okay, और इसको सॉल्व करेंगे तो we will have 6. दैट मीन्स कि ये जो हमारी टू साइड्स हैं, AB इक्वल आ गया हमारे पास BC के, विच इज नॉट इक्वल टू AC. दैट मीन्स कि हमारा ट्राइंगल कैसा है, ये A है. ओके, ये B है, ये C है. तो AB और BC इक्वल आया है, AC इक्वल, ये A है, ये B है, ये C है. ओके, AB एंड BC तो इक्वल आया है, AC इक्वल नहीं आया है. दैट मीन्स कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन थे, ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल के. ओके, नाउ वी सॉल्व आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड का सेकेंड पार्ट. दैट इज वी हैव अगेन 3 कोऑर्डिनेट्स 0 7 एंड 10. नेक्स्ट इज -1 6 एंड 6 एंड नेक्स्ट इज -4 9 एंड 6. ये हमें प्रूव करना है कि ये वर्टिसेस है राइट एंगल्ड ट्राइंगल के. राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या कंडीशन होती है, इफ वी विल हैव, राइट एंगल ट्राइंगल कैसा होता है, इस टाइप का. ओके, अगर हमारे पास ये A है, ये B है, ये C है, अगर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू आता है AC स्क्वायर, दैट मीन्स कि ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ये किसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, राइट एंगल ट्राइंगल के. ओके, दिस इज आवर पॉइंट A, दिस इज B एंड दिस इज C. सो वी यूज डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर दिस. AB वी आर हैविंग, हमें क्या चाहिए, AB स्क्वायर चाहिए, AB नहीं चाहिए. ओके, सो हम फाइंड आउट करेंगे AB स्क्वायर, x2 माइनस x1 दैट मीन्स -1 0 स्क्वायर प्लस 6 minus 7 square plus 6 minus 10 square.
Okay, after solving this, we will have minus 1 square plus minus 1 square plus minus 4 square. इसे सॉल्व करने के बाद we will have 1 plus 1 plus 16 and that will be equal to होगा 18. AB square हमारे पास आया है 18. Now we find BC square. That will be minus 4 plus 1 square plus 9 minus 6 square plus 6 minus 6 square. Okay, after solving this, we will have minus 3 square plus 3 square plus 0. Okay, तो इसे सॉल्व करने के बाद we will have 9 plus 9. 9 square plus 9 square, that will be नहीं 3, 9 स्क्वायर नहीं आएगा, 3 को हमने स्क्वायर किया तो 9 9 प्लस 18. तो BC स्क्वायर भी अब हमारे पास क्या आ गया, 18 आ गया. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड AC स्क्वायर. A और C के कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके वी यूज़ डिस्टेंस फॉर्मूला. तो 0 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 9 स्क्वायर प्लस 10 माइनस 6 स्क्वायर. ओके, आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल हैव 4 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. ओके, ये किसके इक्वल होगा, 16 प्लस 4 प्लस 16. ओके, 4 का स्क्वायर करा तो 16, 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 का स्क्वायर करा तो 16. दैट मीन्स वी विल हैव 36. यहाँ पे जब हम देखते हैं AB स्क्वायर हमारे पास आया कितना, दैट इज 18. ओके, BC स्क्वायर वी आर हैविंग अगेन 18 एंड AC स्क्वायर हमारे पास 36 है. तो AB और BC जब हम इनको ऐड कर रहे हैं तो वैसे भी हमारे पास 36 ही आ रहा है. दैट मीन्स के जो कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है दैट आर दी वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, नाउ वी हैव थर्ड पार्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व. ठीक है, इसमें हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है -1 2 एंड 1, 1 -2 एंड 5. ओके, next we are having 4 minus 7 and 8 and then 2 minus 3 and 4. ठीक है, क्या बोला है, these are the vertices of a parallelogram. ये हमें प्रूफ करना है. अब पैरेललोग्राम के लिए क्या कंडीशन होगी, पैरेललोग्राम के लिए होगा AB इक्वल टू होगा BC. ओके, पैरेललोग्राम कैसा होता है, इस तरीके से. ठीक है, तो ये हमारे पास A है, ये B है, ये C है, ये D है. तो AB इक्वल्स टू BC ना लेके पैरेललोग्राम के लिए हम लेंगे AB इक्वल्स टू CD एंड BC इक्वल्स टू AD. ओके, यही होता है पैरेललोग्राम में, ये दोनों साइड्स पैरेलल होती हैं, ये दोनों साइड्स पैरेलल होती हैं, तभी तो वो पैरेललोग्राम कहलाता है. ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अगेन बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, सपोज ये है A, ये B, ये C और D. ओके, AB फाइंड आउट कर लेते हैं और AB विल बी होगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला 1 + 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 5 - 1 स्क्वायर होल अंडर रूट. आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट under root 36. I am solving it directly. I wanted you to solve step by step. Okay, now I am solving BC. BC क्या होगा, BC will be 4 - 1 square plus -3 plus 7 square plus 4 - 8 square. तो after solving this we will get under root 43. अभी तक तो हमारा AB और BC इक्वल नहीं आया है. ओके, नाउ आई फाइंड CD. CD विल बी 2 - 4 स्क्वायर. CD will be 2 - 4 square plus -3 plus 7 square plus 4 - 8 square whole under root. This will be equal to under root 36 and we have to find DA also. Okay, तो DA के लिए -1 - 2 square plus 2 + 3 square plus 1 - 4 square. Okay, after solving this we will get under root 43. So as you can see here AB equals to आ रहा है CD and BC equals to आ रहा है DA.
ए बी इक्वल्स टू आ रहा है बी सी, दैट इज √36 एंड सी डी. ओके, and BC equals to we are having DA, that is √43. So this is the vertices, these are the vertices of a parallelogram. Okay, our next question is question number 4. Find the equation of the set of point which are equidistant from the point. हमें set of points find out करने हैं which are equation actually we have to find जो equidistance है from the point 1, 2 and 3. okay, and 3, 2 and -1. तो इनसे हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. सपोज P वी आर हैविंग x, y and z. ठीक है, तो P वो पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंस है पॉइंट A से एंड पॉइंट B से. ओके, तो दैट मीन्स कि हमारे पास होना चाहिए PA² इक्वल्स टू PB². राइट, जब इक्विडिस्टेंस है ये पॉइंट, इसकी इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है. दैट मीन्स हमारे पास होना चाहिए PA² इक्वल्स टू PB². ओके, तो PA² और PB² फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. ये होगा x-1² प्लस y-2². जब हम PA² को फाइंड आउट करेंगे प्लस z-3². ओके, विच इज इक्वल टू होगा x-3² प्लस y-2² प्लस z+1². ये -1 है, दैट्स वाई वी राइट हियर z+1². अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन सबका स्क्वायर निकलना है. तो a+b² एंड a-b² का फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज. a+b² होता है a² + b² + 2ab. राइट, एंड a-b² होता है a² + b² - 2ab. ओके, सो दिस फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज हियर. x-1² होगा x² + 1 - 2x. राइट, y-2² होगा y² + 4 - 2y. सॉरी 4y, 2 into 2. ओके, अगेन z² + 9 - 6z. राइट, इधर भी फाइंड आउट कर लेते हैं. ये होगा x² + 9 - 6x. ओके, नाउ हियर y² + 4 - 4y प्लस z² + 1 + 2z. राइट, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है. यस, x² से x² कैंसिल, y² से y² कैंसिल एंड z² से z² कैंसिल हो रहा है. ओके, नाउ वी हैव -2x -4y -6z. इसके अलावा हमारे पास बचा है इधर 1 + 4 + 9. राइट, इधर देख लेते हैं. इधर वी आर हैविंग -6x -4y एंड +2z. ओके, okay, so here is remaining +9 +4 and +1. okay, 9, 4 and +1 भी कैंसिल हो जाएगा. ओके, सो आर इक्वेशन हमारे पास बचेगी क्या, -2x -4y. -4y भी कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ -4y नहीं लिखेंगे. एंड -6z इधर हो जाएगा. एंड इधर हमारे पास रहेगा 6x -6x + 2z. क्या करेंगे, x की टर्म इधर ले आएंगे राइट लेफ्ट हैंड साइड पे और z की टर्म राइट हैंड साइड पे. तो हियर -2x + 6x. ओके, एंड इधर हमारे पास बचा 2z + 6z. सो आवर इक्वेशन विल बी 4x = 8z. इसे फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, 4 कॉमन लेके, तो x = हमारे पास होगा 2z. या फिर इस इक्वेशन को वी कैन राइट x - 2z = 0. दैट विल बी आवर इक्वेशन ऑफ द पॉइंट
which have equidistance from A and B. Okay. Now we have our next question. That will be our last question. That is question number 5. Okay. Question number 5 is find the equation of set of points P, the sum of whose distances from A and B is equal to 0. What we have in this question कि हमें एक point P given है, ठीक है, that will be x, y and z. Okay. And question के अंदर बोला है कि इनका डिस्टेंस A से और B से, A point we are having 4 0 0 and B point we are having minus 4 0 0. ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है कि PA प्लस PB इक्वल टू है 10. बिकॉज हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट P की द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B इज इक्वल टू 0, जिसका डिस्टेंस PA एंड PB प्लस सम ऑफ हुज डिस्टेंस इज इक्वल टू 0. तो हमें PA फाइंड आउट करना है, PB फाइंड आउट करना है एंड उनका एडिशन इक्वल्स टू 10 है, ऐसा हमें क्वेश्चन के अंदर बोला है. ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है. तो PA इक्वल टू हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज. तो PA विल बी x माइनस 4 स्क्वायर प्लस ये दोनों 0 है तो y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. ओके, अंडर रूट प्लस अगेन B पॉइंट के साथ देखेंगे x प्लस 4 स्क्वायर प्लस ये दोनों 0 है तो y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स टू 10. ओके, अब सॉल्व करेंगे. दिस इज आर x प्लस 1 एंड x माइनस 1. दोनों साइड क्या कर लेते हैं, हम स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो वी विल हैव, ये है हमारे पास a प्लस b, दोनों का स्क्वायर करेंगे या फिर हम एक साइड उधर ले जाते हैं. तो वी विल हैव x माइनस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू 10 माइनस x प्लस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ओके, दिस इज आवर अंडर रूट. नाउ वी स्क्वायर, अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे. ओके, सो वी विल हैव x माइनस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ओके, इधर वी आर हैविंग 10 माइनस दिस, 10 माइनस एक्स, अगर इसे मान लेते हैं पूरे को कैपिटल एक्स, तो 10 माइनस एक्स क्या होगा 100 प्लस इसका पूरे का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और 2ab, यही हम लिखते हैं माइनस का 2, दैट मीन्स 20. ओके, ab 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें 20, तो x प्लस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. दिस विल बी आर इक्वेशन. ओके, ये हमारी इक्वेशन बनी है. नाउ अब सॉल्व करते हैं. ये भी क्या है, a माइनस बी, ये है a प्लस बी. तो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल हैव एक्स स्क्वायर प्लस 16, 4 4 जा 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. दिस विल बी 100 प्लस एक्स, ए प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x. ओके, एंड दिस विल बी प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. नाउ 20, यहाँ पे भी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं. तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी प्लस 16, ठीक है, यहाँ पे क्या है 4 स्क्वायर, दैट मीन 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. यही आया हमारे पास. ओके, नाउ आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस वी विल हैव 20 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 8x, ठीक है, प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. क्या करेंगे, जब हम इसे लेके जाएंगे इधर की साइड तो ये क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा. ओके, सो दैट विल बी इक्वल टू 100 प्लस 16x. ओके, नाउ यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेते हैं. यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4. तो वी विल हैव
5 under root x square plus 8x plus 16 plus y square plus z square, which will be equal to 25 plus 4x. Now again on squaring both sides we will get 25 x square plus 8x plus 16 plus y square plus z square, which is equal to, दोनों साइड हमने स्क्वायर कर ही लिया है, तो दैट विल बी 625 प्लस 16x स्क्वायर प्लस 200x. ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस इक्वेशन से, तो दैट विल बी 25x स्क्वायर प्लस 200x प्लस 400 प्लस 25y square plus 25z square, and that will be equal to 625 plus 16x square plus 200x. Okay, now after solving this, x square वाली term अलग ले लेते हैं, 25x square minus 16x square. Okay, next we are having 200x. 200x से 200x हमारा कैंसिल हो जाएगा. ओके, तो 200x वाली टर्म नहीं लिखेंगे. नाउ वी आर हैविंग प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर. ओके, एंड प्लस 400 माइनस 625, दैट विल बी इक्वल टू 0. After solving this, we will have 9x square plus 25y square plus 25z square, and इसे सॉल्व करने के बाद 400 माइनस 625 वी विल हैव माइनस 225 इक्वल टू 0. सो दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ पॉइंट पी ए पी whose distance PA plus PB equal to 10. Okay, that's it. Thank you everyone.